سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کے ڈی اے کی جانب سے بینائی سے محروم بہن بھائی کو ملازمت نہ دینے کا معاملہ، آئینی بینچ نے 2 ہفتوں کے اندر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ شاہ فیصل کالونی میں پارک کی زمین پر قبضے کے خلاف درخواست، آئینی بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بجلی کے بل میں شامل میونسپل ٹیکس میں اضافہ، اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین کی ٹیکس کے اضافے کے خلاف درخواست، عدالت کا کے الیکٹرک اور کے ایم سی کو نوٹس جاری، عدالت نے کے ایم سی اور کے الیکٹرک سے جواب طلب کر لیا۔ خاتون سمیت افراد کے قتل کا کیس، جنوبی کی عدالت نے 2 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا۔ والد، دادا اور چچا کے قتل کا کیس حل نہ ہو سکا، ام رباب چانڈیو اپنے وکیل صلاح الدین پنور کے ہمراہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ ام رباب نے سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمال۔ مہڑ دادو میں پیش آنے والے 3 افراد کے قتل کے مقدمے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ام رباب چانڈیو نے اپنے والد، دادا اور چچا کے قتل کے مقدمے میں سیشن عدالت کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ام رباب کے مطابق یہ مقدمہ 8 برس تک زیر سماعت رہا، جس دوران 17 گواہوں اور 3 عینی شاہد گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، تاہم ان کا موقف ہے کہ شواہد کا درست انداز میں جائزہ نہیں لیا گیا۔ یقیناً آج جو میرے والد صاحب، دادا اور چچا کا قتل کیس تھا، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ہم نے اس جو کیس کا فیصلہ آیا چیلنج کیا، اور ہم یہاں پر رول 7 کے تحت چیف جسٹس صاحب کو ایک درخواست دی کہ مجھے وہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہیں، یقیناً سپریم کورٹ تک کی آبزرویشن رہی ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے میں الحمدللہ ضرور کہوں گی کہ یہ بات تو ضرور سنی ہے اور ان تک پہنچی ہے کہ خطرات ہیں، اور انہوں نے رول 7 کی اپلیکیشن الاؤ کر کے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ آپ کی اپیل یہاں پر سنی جائے گی۔ وکیل درخواست گزار صلاح الدین پنور کے مطابق سندھ ہائی کورٹ نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کیس کی سماعت کراچی میں کرنے درخواست منظور کر لی ہے، جس کے بعد اب سماعت کراچی میں ہوگی۔ سارے لوگوں کو ریلیز اور ڈسچارج کیا گیا، اکیوٹ کیا گیا، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ باعزت بری کیا گیا، تو جس کی اپیل کی وجہ سے آج کمپلیننٹ پارٹی ام رباب یہاں پر ہم آئے اور ہم نے رول 7 کی اپلیکیشن فائل کی، جو کہ چیف صاحب نے الاؤ کر دی ہے کہ یہ اپیل جو ہے وہ آپ پرنسپل بینچ میں فائل کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو سنا جائے گا۔ ام رباب چانڈیو کے مطابق ماتحت عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ کوئی غیر جانبدار گواہ سامنے نہیں آیا۔ سیشن عدالت نے پیپلز پارٹی رکن اسمبلی سردار خان چانڈیو، برہان چانڈیو سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ ممتاز جمالی، سٹی 20۔ میٹرک امتحانات میں نقل مافیا ایک بار پھر بے لگام۔ امتحانات کے آخری روز بھی 10ویں جماعت سندھی کا پرچہ امتحان سے پہلے آؤٹ ہو گیا۔ حل شدہ جوابات سوشل میڈیا پر گردش کرتے رہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ شفافیت کے دعوے فلاپ، امتحان سے پہلے جواب تیار۔ میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کی سرگرمیاں ایک بار پھر عروج پر رہیں۔ 10ویں جماعت سندھی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی آؤٹ ہونے کا انکشاف سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق پرچہ حل شدہ جوابات کے ساتھ سوشل میڈیا پر دستیاب رہا، جس کے بعد امتحانی شفافیت اور سیکیورٹی انتظامات پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس سال بھی پہلے پیپر سے لے کر آخری پیپر تک پرچے آؤٹ ہونے کی روایت برقرار رہی، جبکہ میٹرک بورڈ انتظامیہ کی جانب سے شفاف امتحانات کے دعوے کہ اس بار پرچے گیس پیپر سے مختلف آئے، تاہم انہوں نے مکمل تیاری کی تھی اور نتائج سے پر امید ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو ہم پیپر یاد کر گئے وہ آیا ہی نہیں ہے، پوری رات ہم پڑھ کے گئے لیکن وہ پیپر آیا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے تھوڑا بہت ایڈ کر کے لکھ دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ تیاری اپنی بھرپور کر کے آیا کریں، کسی اور کے آسرے پہ نہیں آیا کریں پیپر دینا۔ امتحانات ختم ہونے پر طلباء نے خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ اب دوستوں کے ہمراہ موج مستی کریں گے، دوستوں وغیرہ کے ساتھ مل کے منڈی جائیں گے اور مطلب گھومنے پھرنے جانا ہے، اور یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ ہی جانا ہے ہم نے تو۔ دوسری جانب بورڈ آفس کے مطابق میٹرک امتحانات کے نتائج 3 ماہ کے اندر جاری کر دیے جائیں گے۔ کیمرہ مین عمران احمد خان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز کل سے ہوگا، جو 15 جون تک جاری رہیں گے۔ امتحانات میں 1,60,000 سے زائد امیدوار حصہ لیں گے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔
कराची बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट इम्तिहानात बुध से शुरू होंगे। इम्तिहानात के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल। शहर भर में 175 इम्तिहानी मराकज कायम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात, जबकि नकल की रोकथाम के लिए पहली बार डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। हमने एक ऐप लॉन्च की है, उसमें डैम्स के नाम पे डिजिटल अटेंडेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की, उस पे तमाम हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट CCO प्लस विजिलेंस ऑफिसर को हमने ट्रेनिंग करवाई है। टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स जो है हमारे मॉर्निंग के 130 हैं, इवनिंग के 45 हैं, कुल मिला के 175 बनते हैं। चेयरमैन बोर्ड फकीर मोहम्मद लाखो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शफाफ और पुरअमन इम्तिहानात के लिए तमाम इदारों से ताउन हासिल किया गया है। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी, नकल और पर्चा आउट के रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग के मौसर इकदाम और किसी भी बेज़ाब्तगी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। हमने कोशिश की है कि मोबाइल की कलेक्शन पॉइंट वहाँ बना दें जहाँ मोबाइल अंदर लेके जाने की मना किया गया है। जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसके साथ हम मीटिंग कर चुका हूँ। मैं खुद पर्सनल तौर पे कमिश्नर के साथ मीटिंग कर चुके हैं। उसके साथ हमने अपना एडिशनल IG से मीटिंग कर चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिजल्ट जो है वो कंप्रोमाइज ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर नाज़िम इम्तिहानात जरीना राशिद और डिप्टी कंट्रोलर जाहिद रशीद भी मौजूद थे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सरकारी इदारों में दोहरी मुलाजमतों का मेगा स्कैंडल। सिटी 21 की खबर पर बड़ा एक्शन। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शहजादा खुर्रम अलवी और लेक्चरर यासरा खून मुलाजमत से फारिग। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध के सरकारी इदारों में दोहरी मुलाजमतों का मेगा स्कैंडल। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के 2 असातिज़ा नौकरी से हाथ धो बैठे। सिटी 21 की खबर पर वजीर जामियात और बोर्ड इस्माइल राहो ने नोटिस ले लिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के प्रोफेसर शहजादा खुर्रम अलवी और लेक्चरर यासरा आखवंद से इस्तीफे ले लिए। दोहरी मुलाजमत रखने वाली यासरा आखवंद महकमा स्कूल तालीम में प्राइमरी टीचर तैनात थी। डॉक्टर शहजादा खुर्रम अलवी महकमा कॉलेज तालीम में लेक्चरर ओहदे पर थे। दोनों अफराद डबल तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। रजिस्ट्रार बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ने वजीर जामियात को खत अरसाल करके आगाह कर दिया कि दोनों को यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया है। आज़ाद नोड़ियो, सिटी 21। बलदियाती मजदूर अलायंस ने यौम मजदूर इस बार बतौर एहतजाज मनाने का ऐलान किया है। 30 अप्रैल को आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। इस हवाले से रिजवान अहमद की रिपोर्ट। रवां साल 1 मई के बजाय 30 अप्रैल को यौम मजदूर मनाने का फैसला। बल्दियाती मजदूर अलायंस ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि ये गैर मामूली इकदाम मुलाजमीन को दरपेश संगीन मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए उठाया गया है। अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह के मुताबिक 30 अप्रैल को आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। हबीब ऐवान बोले, साल 2019 से रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात से महरूम हैं। हम एक वॉक का बंदोबस्त करेंगे, आर्ट्स काउंसिल से लेकर प्रेस क्लब तक जाएंगे और वहाँ एक याददाश्त भी पेश करेंगे और वहाँ पे हमारा ये एहतजाज जो होगा वो ये होगा कि 2019 से अभी तक जो हमारे लोगों को वाजिबात नहीं मिल रहे, इसके बाद हमें 33% कम पेंशन मिल रही है। तकरीबन 7 साल हो गए बल्दिया के मजदूर बेचारे सड़कों पर रुल गए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो शिकागो की तारीख को दोहराना चाहती है। वो यही चाहती है कि शिकागो की तारीख को दोहराया जाए, मजदूर सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें, खून खराबा हो। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि 2019 से बल्दियाती मुलाजमीन अपने वाजिबात से महरूम हैं और मुतादिद बार एहतजाज के बावजूद मसाइल हल नहीं किए गए। उनका मौक़िफ़ है कि मुलाजमीन को हुकूक से महरूम रखकर उन्हें सख्त हालात में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। असल चीज़ ना लोगों को पेंशन, ना लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हुई मिली हैं। इन दोस्तों की बेइंतहा काविशें, ये जो कर रहे हैं, हम हर सूरत हर हाल में कदम ब कदम इनके साथ। रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
महंगाई का वार एयर कूलर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगा। एयर कूलर्स की कीमतों में 20 से 25% तक इजाफा हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का एक और वार, ठंडक भी अब महंगी हो गई। जिस कूलर से सुकून मिलता था अब वो भी बजट से बाहर। महंगाई ने ठंडी हवा को भी गर्म कर दिया। फाइनेंस सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स सुहेल मलिक का कहना है एयर कूलर की कीमत में 20 से 25% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी बुनियादी वजह प्लास्टिक की बढ़ती हुई कीमतें हैं। गुज़िश्ता साल एयर कूलर्स की तलब ज्यादा रही थी, ताहम रवा साल फरोख्त में तकरीबन 25% कमी देखने में आ रही है। पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो एयर कूलर की जो कीमत है वो 20 से 25% बढ़ चुकी है, क्योंकि प्लास्टिक का दाना पूरी इंटरनेशनली महंगा हुआ है, कॉपर महंगा हुआ है। तो जो एयर कूलर पिछले साल 20 से 22 हज़ार रुपये का था वो 30 से 32 हज़ार रुपये का है, और अच्छा एयर कूलर जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये का है। तो अभी तक जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि 25 से 30% सेल पिछले साल के मुकाबले में इसकी कम होती हुई नजर आ रही है। सुहेल मलिक का कहना था कि एयर कंडीशनर की फरोख्त भी तवक्कुआत से कम रही है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 12 लाख एसीज फरोख्त होते हैं, ताहम गुज़िश्ता साल ये तादाद कम होकर 8 लाख यूनिट तक महदूद रही। उन्होंने बताया कि कंपनियों ने रवा साल तलब के पेश नज़र तकरीबन 15 लाख एसीज दरामद किए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 20 से 25% यूनिट्स ही फरोख्त हो सके हैं। पिछले साल की प्राइस पर भी एसी फरोख्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आम आदमी जो है अब वो तो एसी नहीं ख़रीद रहा, लेकिन जो दरमियानी तबका था वो भी बिजली के बिलों की वजह से जो है इसको नहीं ख़रीद पा रहा। और इसमें भी चूँकि पिछले साल सीज़न जल्दी एंड हो गया था, बारिशों की वजह से महदूद रहा था, तो जो 4 लाख एसी पिछले साल बचा था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ इस साल, और इस साल भी कंपनी ने 15 लाख एसी इंपोर्ट किया, जबकि पूरे पाकिस्तान की जो मार्केट है वो 12 से 13 लाख एसीयों की है जो फ़रोख्त होते हैं। शहरियों का कहना है कि अब एयर कूलर भी बजट से बाहर हो गया है। बिजली और पेट्रोल ने पहले ही जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब बंदे के लिए तो ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है पिछले साल में जो है ये तकरीबन 16,000 17,000 तक का था, अब मगर अभी जो है ये 21,000 22,000 रुपये का गरीब बंदा कहाँ से लेगा ये। एयर कूलर लोग मजबूरी में लेते हैं कि भाई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसकी वजह से लोग अपनी रात के सुकून की नींद सोने के लिए एयर कूलर को करते हैं। ताजिरों का कहना है कि महंगाई के बाइस आवाम की कुव्वत खरीद में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से मार्केट में मजमूई डिमांड कम हो गई है। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज मंदी का रुझान गालिब रहा। 100 इंडेक्स 1085 पॉइंट से कमी के बाद 1,68,412 की सतह पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। शरह सूद में इजाफा, सरमायाकारी सुस्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1085 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,68,412 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में गिरावट 1,68,170 पॉइंट्स तक रही। माहिरीन का कहना है कि पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद सरमायाकारों में मोहतात रवैया मजीद बढ़ गया। देखिए मार्केट ने तो कल ही अपना शो ऑफ कर दिया था कि एट द एंड ऑफ मार्केट जो माइनस चली गई थी प्लस होने के बाद, क्योंकि लोगों को प्रेडिक्शन आ जाती है कि बढ़ने, और वही हुआ जो लोगों को मतलब कल दोपहर को उम्मीद हो गई थी कि 1% बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से आज मार्केट आपने अपना रिस्पांस दिया है, और हो सकता है ये रिस्पांस थोड़े टाइम चले, एक आध दिन, इसके बाद मार्केट सेटअप हो जाएगी इंशाल्लाह। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट का रुझान देखने में आया। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 20।